start the class. Good morning to you all and good morning, good afternoon everyone. So we have doing our revision work, isn't it? Final exam कब होगा? Date मिल जाएगा आप लोग को. Don't worry. So we have doing our revision work and we have done revision of chapter 3. So I will send you a worksheet. I think in WhatsApp group, I think all of you have completed it. I have sent you a worksheet on WhatsApp group. All of you have completed in your copy. आपने कॉपी में कंप्लीट कर लिया है? Yes. Okay. Now I am going to tell the answer. Match with your answer and correct it. Okay. अपने अपने आंसर के साथ जो आपने अपने कॉपी में लिखा है या तो उसको आप लोग करेक्ट कर लीजिए, किसी का जो भी मिस्टेक होगा. ठीक है. Yes, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था. नंबर 1 A. गणेश चतुर्थी इज सेलिब्रेटेड मेनली इन इट्स महाराष्ट्र एंड साउथ इंडिया. Correct it in your copy. Okay. Ganesh Chaturthi is celebrated mainly in Maharashtra and South India. In North India, effigies of Ravana, Kumbhakarna and Meghnad, it's set on fire on Dasahara. Next is Navroz is celebrated by Parsis. Navroz is celebrated by Parsis. Number D. Christian wedding is conducted by a priest in the church. Next is Dash is performed during Navratri celebration of Gujarat. It's Garba. Garba is performed during Navratri celebration of Gujarat. Yes, all of you have completed. Okay. 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 I think all of you have learned the question answer of chapter 3. Okay. Okay. Christian. एक बार फिर से मैं बता दे रही हूँ, आप लोग मैच कर लीजिए. ए महाराष्ट्र, बी दशहरा, सी Parsis, D Christian and E Garba. Okay, all of you completed. क्रिश्चियन का स्पेलिंग नहीं पता? क्रिश्चियन आप लोग आज पहली बार पढ़ रही हैं. CHRISTIAN क्रिश्चियन. CHRISTIAN Christian. Yes. Okay. Now there is some question. I think all of you have learned the question answer of chapter 3. All of you have learned. Okay.
Anmol Kumar. Anmol Kumar, unmute your phone. Name two festival celebrated in India. टॉपिक में कुछ गड़बड़ी है, लेकिन हम रखिए, छोड़िए। नहीं। Yes, Anmol, you have to give the answer. Name two festivals celebrated in India which the idols are immersed in water after the worship. Yes. दुर्गा पूजा और दशहरा तो एक ही चीज हुआ ना। दुर्गा पूजा और दशहरा तो एक ही फेस्टिवल हुआ, दो अलग अलग स्टेट्स में मनाया जाता है। दुर्गा पूजा वेस्ट बंगाल में और दशहरा या रामनवमी दशहरा या नवरात्रि जो है वो गुजरात में। दशहरा हम लोग इधर बिहार में या फिर उत्तर प्रदेश में दशहरा मनाते हैं, वेस्ट बंगाल में दुर्गा पूजा मनाते हैं और गुजरात में नवरात्रि मनाते हैं। लेकिन वो तीनों एक ही फेस्टिवल का नाम है जिसको अलग अलग तरीके से मनाते हैं। ठीक है, तो एक आपका हो गया दुर्गा पूजा, और एक और कोई फेस्टिवल का नाम बताइए। हाँ, गणेश चतुर्थी। गुड गुड, वेरी गुड। आप लोग फोन अगर म्यूट नहीं रखेंगे ना तो फिर क्लास बहुत डिस्टर्ब होगा। अभी भी किसी का फोन अनम्यूट है? फोन को म्यूट रखिए, जब कुछ कहना, जब मैं बोलूंगी उसी टाइम फोन अनम्यूट कीजिएगा, ठीक है? यस। श्रेया कुमारी, unmute your phone. For how long is Navratri celebrated? For how long is Navratri celebrated? Yes, 9 days. Mute your phone. Next is Dharmesh, on your video and unmute your phone. Which god is worshipped during that period? यानी कि which god is worshipped during नवरात्रि? धर्मेश को मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही है? शुभांगी, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? Yes, Subhangi. Which god is worshipped during Navratri? इतना इजी आंसर नहीं पता है? नो।
Krishiv, 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 unmute your phone. Krishiv, unmute your phone. Which god is worshipped during Navratri? Yes, very good. Very good. अब एक एक करके सब लोग बोलेंगे. चलो, आई थिंक चैप्टर 3 का क्वेश्चन आंसर सबने लर्न कर लिया है. नेक्स्ट चैप्टर जो हमें रिवीजन करना है वो है चैप्टर 8 फ्रॉम फर्स्ट टर्म. चैप्टर 8 फ्रॉम फर्स्ट टर्म. All of you open your book, page number 62. Chapter 8 from first term, leisure time. Okay, we have completed the revision of chapter 1 and chapter 3. Chapter 1 family relationship and chapter 3 celebrating our diversity. And next is the leisure time from फर्स्ट टर्म. ये 3 चैप्टर जो है हम लोगों को फर्स्ट टर्म से फाइनल टर्म के लिए रिवीजन करना है. ठीक है. और कल आप लोग क्या करेंगे, ये लीजर टाइम जो है चैप्टर, उसमें जो भी डिफिकल्ट वर्ड है आज आप लोग क्या करेंगे, लीजर टाइम चैप्टर को पढ़ेंगे. उसके बाद डिफ़िकल्ट वर्ड्स को अंडरलाइन करेंगे और उसके स्पेलिंग को, डिफ़िकल्ट वर्ड्स को लर्न करेंगे. कल हम लोग इसका स्पेलिंग टेस्ट करेंगे. ठीक है. लीजर टाइम का चैप्टर 8 का हम लोग करेंगे कल स्पेलिंग टेस्ट. ठीक है. 10 स्पेलिंग होगा और डिफ़िकल्ट वर्ड्स, जो भी आपको डिफ़िकल्ट वर्ड लगे उसको अंडरलाइन करके उसको लर्न करिएगा. कल हम लोग इसका टेस्ट करेंगे. ठीक है. सो What is a leisure time? Leisure time क्या होता है? What is leisure time? Leisure time. What do you mean by leisure time? Yashasvi. Yashasvi. Yes, Yashasvi. What do you mean by leisure time? मैंने बोला था आपको बोलना है, सिर्फ ये यशस्वी बोलेंगे. एक साथ सब बोलना शुरू कर देते हैं, फिर किसी की आवाज सुनाई नहीं देती है. ठीक है. यशस्वी बोलेंगे. यस यशस्वी. यस, वेरी गुड. नाउ म्यूट योर फोन. यस यस यस, वेरी गुड. So that leisure time. What is a leisure time? It means free time. It means the time when you relax your body and mind. The time that you can do your favorite work like watching television, drawing, reading storybooks, whatever you want to do. ठीक है. जो भी आप करना चाहते हैं वो लीजर टाइम में आप करते हैं. अगर आपको बोला जाए कि आप सारे टाइम में पढ़ते ही रहो, तो क्या कभी ऐसा पॉसिबल है? सारे टाइम में पढ़ोगे, आपको और भी चीज़ों की ज़रूरत होती है, जैसे कि खाने की नीड होती है,
जैसे कि सोने की नीड होती है, वैसे ही कुछ टाइम ऐसा होता है जब हम अपने बॉडी को और अपने माइंड को एकदम रिलैक्स छोड़ देते हैं। उस टाइम पे हमें किसी चीज़ की कोई चिंता नहीं होती है और वो टाइम हम इंजॉय करना चाहते हैं अपने फेवरेट काम में। जैसे कि किसी को मन करता है कि हम कार्टून देख करके अपने बॉडी को और माइंड को रिलैक्स करें। किसी को लगता है कि नहीं, मैं गेम खेल करके मुझे अच्छा लगता है, तो वो कुछ गेम खेलते हैं, उनका अपना फेवरेट गेम है। किसी को मन करता है पेंटिंग करने का, ड्राइंग करने का, तो वो करते हैं। इसको जो भी अच्छा लगता है करना वो करते हैं। इसी को कहते हैं लीजर टाइम, जिस टाइम पे वो अपना कोई इंपॉर्टेंट काम नहीं कर रहे होते हैं। आप लोगों का सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है? पढ़ाई करना है ना। आपको और कोई तो काम करना नहीं पड़ता है, सिर्फ पढ़ाई करते हैं, थोड़ा बहुत अपना घर का काम करते हैं, अपना काम करते हैं, है ना। घर का भी काम हम कह सकते हैं कि आप अभी नहीं करते हैं, थोड़े छोटे हैं अभी आप लोग, तो आप अपना काम करते हैं, अपनी चीज़ों को अपने जगह पे रखते हैं, अपनी चीज़ों को संभालते हैं, अपने ड्रेसेस को अपने जगह पे रखते हैं। ये सारा काम, ये आपका अपना काम हुआ। ये काम आप सबको करना चाहिए, लेकिन आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम क्या है? पढ़ाई करना। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आप उसमें अपना लगाते हैं। लेकिन एक टाइम आता है जब पढ़ते पढ़ते भी आप लोग थक जाते हैं, है ना। ऐसा होता है ना, आप तो बैठ करके पढ़ते हैं, आप उस टाइम पे कोई फिजिकल वर्क नहीं कर रहे होते हैं, लेकिन जब पढ़ाई करते हैं तो वो आप अपने दिमाग से करते हैं, तो उस टाइम पे अपने ब्रेन से करते हैं, तो उस टाइम में आपकी बॉडी भी थक जाती है और आपका माइंड भी थक जाता है। और उस टाइम पे आपको ज़रूरत होती है रिफ्रेशमेंट की। आप कुछ ऐसा करना चाहेंगे जिस समय आप अपने बॉडी को और माइंड को रिलैक्स कर सकें, उसको कहते हैं लीजर टाइम। मेरी आवाज सबको सुनाई दे रही है? एम आई ऑडिबल टू यू? ओके, नाउ underline this sentence. Underline this. Leisure time is the time for refreshing and relaxation. As I told you, मैंने जैसा कि आपको पहले बताया था, लीजर टाइम वो टाइम है जिसमें हम अपने बॉडी को और अपने माइंड को रिलैक्स करते हैं। अंडरलाइन दिस लाइन। ओके, people have enjoyed various leisure activities since ancient time. Some activities were enjoyed individually and some in groups. सिर्फ आज के ज़माने में ही नहीं, पहले के ज़माने में भी, एंशिएंट टाइम में लोगों को उस समय भी कुछ ऐसा करने की ज़रूरत महसूस होती थी जिस टाइम वो अपना इंजॉयमेंट कर सके, अपनी बॉडी को और माइंड को रिलैक्स कर सकें। वो उस समय भी उस तरह की कुछ एक्टिविटीज़ करते थे, लेकिन कुछ एक्टिविटीज़ जो होती थी वो इंडिविजुअली होती थी, वो कुछ और कुछ एक्टिविटीज़ जो होते थे वो ग्रुप में होते थे। The favorite leisure time activities in olden times were ball games, racing, playing with marbles or painting the walls of their caves, hunting, swimming, etc. पहले के ज़माने में टीवी तो होता नहीं था, तो लोग कार्टून तो देख नहीं सकते थे, ठीक है, मूवी तो देख नहीं सकते थे। तो उस टाइम वो क्या करते थे? उस टाइम में वो लोग करते थे, उनका फेवरेट काम क्या होता था? पेंटिंग करना, ठीक है। वॉल्स को अपने केव्स में, जिस केव्स में वो रहते थे या जिस हार्ट में वो रहते थे, उनके वॉल्स को वो लोग पेंटिंग करते थे। उसके बाद से रेसिंग करते थे, बॉल गेम्स खेलते थे। उसके बाद हंटिंग, स्विमिंग, बोटिंग, ये सब करते थे। Yes, Bhumika, you want to say something? Bhumika, unmute your phone.
क्योंकि अभी ये ऑनलाइन क्लास हो रहा है और ऑनलाइन क्लास में आप एक साथ सिर्फ 4 या 5 ही क्लास कर पाएंगे, उसके बाद से आपका डेटा ख़त्म होने लगता है। तो जो मेजर सब्जेक्ट है हम लोग वही सब्जेक्ट अभी फ़िलहाल पढ़ रहे हैं। जब ये सारे सब्जेक्ट का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, कुछ क्लासेस में जो है वो सारे सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, तो जब इन सारे सब्जेक्ट का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा, तब हम लोग ये सब माइनर सब्जेक्ट करेंगे। मे बी स्कूल हो सकता है आप लोग का नेक्स्ट वीक से खुल जाए, नेक्स्ट वीक तो नहीं कहेंगे, 6 के बाद, तो उस टाइम फिर ऑफलाइन हो सकता है ये क्लास हो जाए, ठीक है। ना यस, पुराने ज़माने में क्या होता था, लोग हंटिंग करते थे, उसके बाद या फिर हॉर्स राइडिंग करते थे। ये उन लोगों का लीजर टाइम एक्टिविटी होता था, इस तरह का एक्टिविटी वो लोग करते थे। सम ट्रेडिशनल एक्टिविटीज आर आर्चरी, बॉक्सिंग एंड स्विमिंग। दे आर स्टिल पॉपुलर इन टुडे ऑल्सो। पहले के ज़माने का कुछ लीजर टाइम एक्टिविटीज़ जो है वो आज भी पॉपुलर है, जैसे कि स्विमिंग, वो पहले के ज़माने में भी होता था, आज भी होता है। आर्चरी, ठीक है, वो पहले के ज़माने में भी होता है और आज भी होता है, भले ही वो थोड़ा सा चेंज हो गया है, लेकिन होता वही चीज़ है, ठीक है। तो आज भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, पेंटिंग, आज भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पहले के ज़माने में भी होता था और आज भी होता है, थोड़ा तरीका चेंज हो गया है, बस इतना ही। स्पोर्ट्स, पहले भी लोग स्पोर्ट्स खेलते थे, आज भी खेलते हैं, लेकिन वो कुछ अलग तरीके के स्पोर्ट्स होते थे और अभी कुछ अलग तरीके। पहले के जो ज़माने के जो बच्चे होते थे, आप अपने पेरेंट्स से, आप अपने दादा दादी से पूछिएगा, वो लोग, उन लोगों के ज़माने में गिल्ली डंडा एक गेम होता था, ठीक है, वो गिल्ली डंडा खेलते थे। और अभी आप लोग क्या खेलते हो, क्रिकेट खेलते हो या फुटबॉल खेलते हो, ठीक है, या वॉलीबॉल खेलते हो, इस तरह के गेम खेलते हो। और उस टाइम में वो लोग मार्बल खेलते थे, कंचा जिसको बोलते हैं, यहाँ देखो पिक्चर में बना हुआ है ना। तो इस तरह के गेम्स जो है वो पुराने ज़माने में, कह सकते हैं एंशिएंट टाइम में लोग खेलते थे। गिल्ली डंडा या फिर स्विमिंग, ठीक है, या फिर बॉक्सिंग, जो कि पहले ज़माने में भी होते थे और आज भी होते हैं। इंडोर गेम्स, सम पॉपुलर इंडोर गेम्स आर, अभी जबकि हमें बाहर निकलना मना है, हम बाहर निकल नहीं सकते हैं, एक तो ठंड बहुत है और कोरोना जो है वो डे बाय डे और बढ़ता ही जा रहा। अब तो धीरे धीरे कम हो गया है, जिस टाइम आप लोग का स्कूल बंद हुआ था उस टाइम ये पीक पर था। तो उस टाइम बच्चों को, खासकर बच्चों को घर के अंदर रहने के लिए बोला जाता था। उस टाइम में क्या कर सकते हैं, घर के अंदर जब रहेंगे तो उस टाइम में क्या कर सकते थे, बाहर जाके क्रिकेट मैच तो खेल नहीं सकते हैं, बाहर जाके फुटबॉल तो खेल नहीं सकते हैं, साइकिलिंग कर नहीं सकते हैं, तो इंडोर गेम्स ही खेलेंगे। जो गेम्स हम घर के अंदर खेल सकते हैं उसको क्या कहते हैं, इंडोर गेम्स। द गेम दैट वी प्लेड इन आवर हाउस, जो गेम हम लोग घर के अंदर खेल सकते हैं उसे इंडोर गेम्स कहते हैं, जैसे कि चेस, लूडो, कैरम, मोनोपोली हो गया, स्क्रैबल हो गया, ठीक है। तो इस तरह के जो गेम्स है वो इंडोर गेम्स होते हैं। और जब बाहर, घर से बाहर नहीं जा सकते हैं, घर के अंदर ही हमें अपने आप को रिलैक्स भी करना है और अपनी पढ़ाई भी करनी है, तो हम इंडोर गेम्स खेलते हैं। They can be played throughout the year as seasonal changes do not affect them. ये जो इंडोर गेम्स जो होता है वो हम घर के अंदर कभी भी खेल सकते हैं, किसी भी टाइम खेल सकते हैं और थ्रू आउट द ईयर पूरे साल हम लोग खेल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि
घर के बाहर बारिश हो रही है और घर के अंदर हम लूडो या कैरम या चेस नहीं खेल सकते हैं, ठीक है। ये सीज़न इसको इफ़ेक्ट, सीज़न जो है वो इंडोर गेम्स को इफ़ेक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग ये घर के अंदर खेलते हैं। और ये इस तरह के जो गेम्स हैं वो किसी भी अदर एक्टिविटीज यानी कि बाहरी एक्टिविटीज़, आउटडोर एक्टिविटी से ये इफ़ेक्ट नहीं होते हैं, ठीक है। Some indoor games like table tennis, squash, billiard and snooker etc. are required special equipment with a hall. टेबल टेनिस, आई थिंक आप सब लोगों को टेबल टेनिस के बारे में पता है ना। टेबल होता है और उसके ऊपर टेनिस खेलते हैं। ये उसके लिए क्या होता है, एक टेबल की ज़रूरत होती है और 2 लोगों की ज़रूरत होती है। टेबल की ज़रूरत होगी, उसके ऊपर ये पूरा नेट लगा हुआ होता है, उस तरह से खेलते हैं। तो उसके लिए स्पेशल इक्विपमेंट की ज़रूरत होती है और एक हॉल की ज़रूरत होती है। अगर हमारा घर थोड़ा छोटा है और एक्स्ट्रा रूम हमारे पास नहीं है तो हम इस तरह का गेम नहीं खेल पाते हैं, ठीक है। कुछ इंडोर गेम्स जो होते हैं वो स्पेशल इक्विपमेंट चाहिए उनके लिए और थोड़ा बड़ा रूम चाहिए होता है। तो इस तरह के जो गेम्स होते हैं वो जो छोटे रूम्स होते हैं उसमें नहीं हो पाएगा। Yes children, now we have the limited time, the time is getting over.